السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 39 نیوز۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی نیوز پر۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی جوہری طاقت بنے 25 سال مکمل ہو گئے۔ دنیا بھر میں پاکستانی یوم تکبیر جوش و خروش سے منا رہے ہیں۔ 25 برس قبل اسی روز پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں اپنی جوہری طاقت کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ وہ یادگار دن ہے جب پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا، اور اسی دن کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں پاکستان عوامی پارٹی آسٹریا کی جانب سے یوم تکبیر اور یوم تکریم شہدائے پاکستان کی مناسبت سے مقامی ریسٹورنٹ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی قربانیوں کو سراہا اور شہدائے پاکستان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں پاک فوج کے حق میں فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ پاکستان زندہ باد، لا الہ الا اللہ، یوم تکبیر زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ تقریب میں پورے آسٹریا بھر سے پاکستانی کمیونٹی کی مذہبی، سیاسی، رفاہی، اسپورٹس، تاجر برادری نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں قرآن پاک کے تلاوت کی سعادت ملک حسن عوان نے حاصل کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ہدیہ نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حافظ عبد الارفاق نے ادا کی۔ اس موقع پر صدر پاکستان عوامی پارٹی آسٹریا امجد بھٹی، پروفیسر ملک شوکت عوان، جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی پارٹی آسٹریا ملک امین عوان، ملک عمیر عوان، منیر احمد مغل، الحاج خواجہ نسیم، فہیم بابر خان، منظور مغل، حافظ نعیم اور کلیم مسیح نے خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں مقررین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یوم تکبیر پاکستانیوں اور پوری امت مسلمہ کے لیے احیاء اور فخر کا دن ہے، جس نے خطے میں طاقت کا توازن برقرار رکھتے ہوئے استحکام پیدا کیا۔ 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے ضلع چاغی میں جوہری تجربہ ایک تاریخی لمحہ اور ملکی تاریخ کا ایک سنگ میل تھا، جس نے پاکستان کو دنیا کی 7ویں ناقابل تسخیر ایٹمی طاقت بنا دیا۔ 9 مئی کو جو حادثہ ہوا ہے، میں تو اس کو حادثہ کہوں گا اور اس کی پر مذمت کروں گا کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس کا نقصان ہے؟ اگر سوچیں تو یہ کس کا نقصان ہے؟ گورنمنٹ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم گورنمنٹ کا نقصان کر رہے ہیں، کسی کے پراپرٹی جلا کے یا گورنمنٹ کی پراپرٹی جلا کے گورنمنٹ کا نقصان کر رہے ہیں، بالکل غلط سوچ ہے۔ ایک طرف پاکستانی قوم، دوسری طرف افواج پاکستان، تیسری طرف ہمارے سیاسی لیڈر، لیکن میں اس وقت صرف اور صرف افواج پاکستان کے لیے بات کروں، اس لیے کہ پاکستان ہے تو افواج پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے تو پاکستان ہے۔ اگر پاکستان کے اندر فوج نہیں تو ہم 1 منٹ کے اندر نیست و نابود ہو سکتے ہیں۔ ہم کیوں بھولتے ہیں کہ ہمارے ہی فوجی جنہوں نے مکہ کے اندر، مدینے کے اندر جا کے ان جگہوں کو بچایا، ہمارے ہی فوجی جنہوں نے اپنی جانیں دے کے ملک پاکستان کو بچایا۔ دل جگرے پاک جوانا دے، ایمان نمانے لوکاں دا، دردی دکھیار انساناں دا، ایمان نمانے لوکاں دا، ایمان نمانے لوکاں دا، دردی دکھیار انساناں دے، رکھے رب آپ بنائے نے اے دوویں مالا جانا دے، رکھے رب آپ بنائے نے اے دوویں مالا جانا دے، وارث نے غازی دردی تے مرد شہید اسمانہ دے۔ غازی نے دھرتی تے مرد شہید اسمانہ دے، گل کی تو سر وارن دی، گل کی تو سر وارن دی، اے نا دی ریت پرانی ہے، ضرب اونا دی فرعونہ لئی، موسیٰ دی ضرب کلیمی ہے، ضرب اونا دی موسیٰ لئی، ضرب اونا دی فرعونہ لئی، موسیٰ دی ضرب کلیمی ہے، اے جانا وار نباندے نے کیتے ہوئے تو کول زبانہ دے۔ یہ جو مزدوریاں، یہ دھکے، یہ مشقتیں، یہ محنتیں، مجھے وہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ خدا کرے میرے وطن پہ وہ اترے فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ تو اس کے بعد آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر،
देखिए, खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान को किसी चीज की कमी नजर आती है आप लोगों को? 4 मौसम है, कितने हसीन मौसम हैं, खूबसूरत वादियां, खूबसूरत पहाड़, मैदान, और आज भी पाकिस्तान का नहरी निजाम दुनिया का सबसे 1 नंबर निजाम है। इतनी खराबियों के बावजूद भी तो खुदा ने किसी चीज की कमी नहीं की, ये हमने खुद ही कर लिया। उसकी मैं एक मिसाल दूंगा कि खाके फ्रांस में बनते हैं, बैंक पाकिस्तान के जलाए जाते हैं। ये कैसा एहतजाज है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। कम से कम हमें जो है इस चीज का इदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा है, ये फौज भी हमारी है, ये इदारे भी हमारे हैं। मैं कुछ देर पहले एक बच्चे की जर्मन में तकरीर थी, जितनी मुझे समझ आई, हकीकत बात है, ये हमारे सभी के लिए समझने वाली बात है। उस बच्चे ने बड़ी मुख्तसर सी बात की कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इधर पैदा हुआ, लेकिन मैं हर साल पाकिस्तान जाता हूं ताकि मेरा पाकिस्तान से मोहब्बत, मेरे वालिदैन पाकिस्तानी हैं और मेरी मोहब्बत रहे ना। लेकिन इस मर्तबा मैं जा नहीं सका, मैं गया नहीं, कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं सिक्योर फील नहीं कर रहा अपने आप को। देखिए, अगर ये बच्चे ये कहेंगे तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमें सोचना होगा पाकिस्तानी आवाम को शऊर दिया जाए, सिस्टम को बेहतर करके जो है खुद ब खुद, ताकि सिस्टम को अच्छा करके ऊपर लाया जा सके। इसका मकसद टेक्निकल एजुकेशन से लोगों को रोशनास करवाना है, इसका मकसद तालीम से हम मांगी है, ताकि जो है हमारी कौम, हमारी मिल्लत के लोग जो हैं, हमारी मिल्लत के बच्चे जो हैं, हमारे मुस्तकबिल के जो नौनहार हैं, उनको जो है हम इंशाल्लाह इस काबिल बना सके कि वो एक मुआशरे के फाल रुकन बन सके। आपने आज तक अपने फराइज को पूरा किया? अगर किया होता तो आज ये हालात ना होते। मैं किसी को भी ब्लेम देने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हर महकमे में अच्छे बुरे लोग मौजूद होते हैं। इसलिए सबसे पहले आप उन लोगों को याद करें जो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। फौजियों ने आपके पाकिस्तान के अंदर जो माहौल क्रिएट किया हुआ है वो आपके यहाँ क्यों नहीं है? इसलिए कि आप काम नहीं करते हो, आप सिर्फ उनकी ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हो। सड़कें बनानी है तो फौजियों ने बनानी है, मतलब दुश्मन के साथ लड़ना है तो फौज ने लड़ना है। आपके प्राइवेट काम करने हैं, घर के अंदर करने हैं, तो उसके लिए आपको फौज की जरूरत है। तो फिर आप उसको क्रिटिसाइज कैसे कर सकते हैं? मुकर्रीरीन का पाकिस्तान में 9 मई के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहना था कि वतन की हुर्मत के अमीन शुहदा हमारे माथे का झूमर हैं, दफ़ाए वतन और कानून की अमलदारी के लिए अपनी जानें निछावर करने वाले हमारे हीरोज हैं। अर्ज़ पाक की खातिर शुहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। मुकर्रीरीन ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश किए। ओवरसीज पाकिस्तानी अपने शुहदा की कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। मुल्क का दफा इस वक्त मजबूत हाथों में है और पाकिस्तान की अवाम अपने पाक फौज के शाना बशाना किसी भी अंदरूनी और बैरूनी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हरदम तैयार है। हम पाक फौज को एक अलग से इदारा समझते हैं, हालांकि हम सब पाक फौज हैं। हमारा सब का भी वही किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में, उसकी हिफाजत में, उसके दिफा के लिए। जितना फौज के सिर्फ हम बगैर हथियार के लड़ते हैं, वो हथियार मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर इंसान को कभी कभी झुकना भी पड़ता है, कभी कभी शिकस्त भी खानी पड़ती है। किसी भी शहर में तुझसा हुस्न जमाल नहीं, तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे, तू दोस्त है वरना। किसी भी शहर में तुझसा हुस्न जमाल नहीं, तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे, तू दोस्त है वरना, किसी दुश्मन में तो जीतनी बनी। कुंदिए बादे महालत से न घबराए खाप, ये तो चलती है तुझे ऊंचा रखने का। तो मौजूद मेरे पाकिस्तानी भाइयों, ना को फौज का कोई बिगाड़ सकता अंदर से, ना को बाहर से। जब से पाकिस्तान बना है, बैरूनी साजिशें हमारे अंदर शामिल हो जाती है, क्योंकि सच बोलने से हर कोई डरता है, लेकिन गलती हमारे अंदर है, इसको दूर करनी होगी। और जब तक ये गलती नहीं होगी, इसी तरह के सानिया होते रहेंगे। तो आप आसपास के इलाके में, आसपास के खानदान के अपने दोस्तों में देखें कि जो ऐसी हरकतें करता है उसको बाज करें। हमारी दुआ है कि खुदा इन सबको अक्ल और तनाई दे। हम फौज पाकिस्तान की जितनी भी काबशें हैं, हम उनको कैसे भूल जा सकते हैं? उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो हम कैसे भूल सकते हैं? वैसे सब मुकर्रीरीन ने पहले सब कुछ बता दिया, लेकिन मैं ये कहूँगा सन 65 की जो कुर्बानियाँ थी फौज की, वो हम कैसे भूल सकते हैं?
जिन्होंने सैकड़ों टैंकों के आगे अपने सीनों पर बम बांध के आगे लेट गए, हम वो कैसे भूल सकते हैं? वरना तो पाकिस्तान अगर ये समझे कि 65 की जंग में पाकिस्तान का शायद वजूद ना होता अगर आप आज हमारी फौज ना होती। तकबीर ऐसे यौम तकरीम शुहदाए पाकिस्तान हर दम मनाने चाहिए, क्योंकि यही इस्तेकाम पाकिस्तान की दलील है। पाकिस्तान में अमन होगा, पाकिस्तान में पॉलिसी भी मजबूत होगी, हमारी दाखिली पॉलिसी भी मजबूत होगी। बाकी जो कुछ 9 मई को हुआ, मैं उसकी सख्ती से मजम्मत करता हूँ। ये जो MM आलम के जहाज के टुकड़े टुकड़े किए गए, ये पाकिस्तान के दिल के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो जहाज दोबारा जुड़ नहीं सकेगा, लेकिन MM आलम के हौसले को मैं आज भी सलूट करता हूँ। MM आलम जैसे और कई नौजवान एयरफोर्स में पैदा होंगे, शहीद मेजर अजीज भट्टी जैसे आज भी जवान फौज में मौजूद हैं और पैदा होते रहेंगे और इस वतन का दिफा करते रहेंगे। मुकर्रिरीन का 39 न्यूज़ से खसूसी बातचीत करते हुए कहना था कि ये कौमी तकरीब पाकिस्तानी फौज से इज़हार यकजहती और इस्तेकाम पाकिस्तान के तनाजुर में मुनक्किद की गई थी, जिसमें नाजरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और मुकर्रिरीन का यही कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी कौम के शाना बशाना खड़ी है। जहाँ तक पाकिस्तान के इत्तेहाद, अलामत और यकजहती की दलील है, इसमें पाक फ़ौज के तक़द्दुस के साथ साथ कौमी अदारों का तक़द्दुस भी उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के आइंदा इस्तेकाम, माशी तरक्की और सियासी बेहतरी का दारो मदार कौमी अदारों की मुस्बत रोल पर है। खुसूसन पाकिस्तान में पाक अफवाज अपनी जानों का नजराना पेश करके जो कुर्बानियाँ पेश कर रही हैं, अपनी ज़रबुल मिसाल कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है और मुस्तहकम नज़र आता है। जहाँ तक 9 मई के वाक़े का ताल्लुक़ है, हम इस तनाजुर में इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज जो पाकिस्तानी अवामी पार्टी के झंडे के नीचे हमने एक प्रोग्राम किया है, अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती और अदारों के साथ यकजहती, और जितने भी मुकर्रिरीन थे सब ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि हम पाकिस्तान अफवाज के साथ हैं, आर्मी के साथ हैं। ऑस्ट्रिया के शहर वियना में आज एक इस्तेकाम पाकिस्तान के सिलसिला में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान अवामी पार्टी उसकी नुमाइंदगी कर रही थी। पाकिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ये पैगाम पहुँचाया गया कि वियना के अंदर रहने वाली तमाम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मिलजुल कर रहना चाहिए। इख्तलाफात नज़रियाती नोयत के होने चाहिए, ना कि ज़ाती नोयत के होने चाहिए। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान अवामी पार्टी हम मुस्तकबिल में हमारा मकसद और हमारा मिशन जो है कि हम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों के लिए और ख़ास तौर पर दही इलाकों के लिए तालीम का फ़रोग जो है, हमारा ये मकसद है, ताकि पाकिस्तान के अंदर हर रुकन जो है फ़ाल रुकन बन सके माशरे का, और माशरे की तामीर व तरक्की के लिए मिलकर काम कर सके। आखिर में हाफिज नईम ने कश्मीरी अवाम, फ़लस्तीन, शुहदाए पाकिस्तान, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम और शुरका के लिए खसूसी दुआएं की। बाद सदर पाकिस्तान अवामी पार्टी आस्टिया अमजद भट्टी ने तमाम लोगों का तकरीब में आने का शुक्रिया अदा किया। जी, आज ऑस्ट्रिया वियना में पाकिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मौजू तकरीब शुहदाए पाकिस्तान था। इस मौके पर बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी के पूरे ऑस्ट्रिया भर से लोगों ने शिरकत की, जिसमें आज इस बात का अहद किया गया कि हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे। शुहदा के हवाले से यहाँ पर फातिहा खानी की गई है। जी, अहम इश्यूज हो या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।